keen interest in history of Indian textiles and temple architecture, history of Goa, and contemporary politics. She manages these diverse areas of interest with great aplomb. She holds a postgraduate degree in communication studies and postgraduate diplomas in Indology and Spanish. She has over 20 years of work experience in the field of media and film and TV production. She has given several lectures on textile history in India and abroad. Currently, she is the chief curator of the Western Ghats Literature Festival, Coimbatore. Shefali has participated in several literary and cultural conferences and festivals. Her series of research articles on the significance of motifs used in Indian art and the synergy across multiple art forms has been critically acclaimed. Shefali has written columns on temple architecture and textiles in both English and Marathi for leading publications. She has been an expert member of the Committee of Textiles appointed by the Central Ministry of Textiles. Shefali is a best-selling author of 3 books in Marathi. Her coffee table bilingual book on Temple of India is slated for a release in early 2023. Shefali has curated conferences on the history of Indian textiles and read several papers on Hindu temple architecture, textile art, and Hindu traditions of arts and crafts. Shefali has been invited by prestigious national institutions like IGNCA Delhi and DIAT Pune to give lectures on textile history. Shefali Vaidya is a fellow of Ananta Leadership Academy and is a recipient of the prestigious Infosys Fellowship from BORI Pune. A keen collector of heritage views, Shefali is a firm believer in giving back to the society, and her career reflects a consciously chosen balance between professional appearances and pro bono work for weavers and other social causes close to her heart like heritage conservation, craft preservation, and Vedic education. Shefali has worked for the welfare of weavers in 5 Indian states during the pandemic period by conducting fundraisers for them online. She also supports a Vedic Gurukul in Varanasi. Shefali Vaidya lives in Pune with a family and 2 rambunctious dogs. Shefali Vaidya for you, audience. Dhanyavad. That was a long introduction. हमारे परम पूज्य गुरु चित्रापुर मठाधीश श्री स्वामी सद्योजात शंकराश्रम जी और काशी मठाधीश श्री स्वामी संयमिन तीर्थ जी, इन दोनों के पावन चरणों को वंदन करके आज मैं यहाँ अपनी बात हिंदी में रखने का साहस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ बैठे हुए आधे लोग से ज़्यादा लोग हिंदी में ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। मेरा विषय है हमारे मंदिर, गोवा के मंदिर और सारस्वत आस्था। परंतु मैं इस विषय पे थोड़ी देर में आऊँगी, मुझे 45 मिनट का समय दिया गया है। मेरे विषय पे आने से पहले मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस सभागृह में आज एक ही बार में कितनी भाषाएं हम सब लोग सुन पा रहे हैं। अगर आप इस सभागृह में ऐसे ही घूमेंगे तो आपको लगेगा कि कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई कन्नड़ में बात कर रहा है, कोई कोंकणी में बात कर रहा है, कोई मलयालम में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, और हैं हम सब एक ही। हम सब सारस्वत हैं, हम सब सरस्वती की संतान हैं। से ये पूरे भारत का माइक्रोकॉज्म है। पूरे भारत में जिस तरह से हमें इतनी सारी विविधता दिखने को मिलती है, लेकिन उसके बीच में हमें हमेशा ही एक एकता के सूत्र में बांध रखा है, वैसे ही आज इस हॉल में भी मुझे मेरे भाई बहन अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, कम से कम 10 राज्यों से आए हुए हैं, लेकिन हम सब इसी मंच में, इसी सभागार में बैठे हैं क्योंकि हम सब सरस्वती की संतान हैं। वही सरस्वती, अगर आपने कल जनरल बख्शी जी का लेक्चर अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये वही सरस्वती है जिसके किनारे पर कभी पहला वेद घोष हुआ था। ये वही सरस्वती है जिसके पानी से सींचकर हमारे देश की संस्कृति पनपी है। ये वही सरस्वती है जो आज प्रकट रूप में हमारे सामने पहले जैसी नहीं है, लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे अस्तित्व में सरस्वती नदी आज भी ऐसे समाई हुई है जैसे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आपको गंगा जी तो दिखती हैं, यमुना जी तो दिखती हैं, सरस्वती दिखती नहीं है, किंतु वो है, वो हमेशा से ही है।
और हम हैं उसकी संतान। ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है जो हमें कई शताब्दों से जीने की शक्ति प्रदान करते आया है। कितने ही आक्रांता आए, हमारे मंदिर तोड़कर चले गए, हमारे ग्रंथ जलाकर चले गए, नृशंस नरसंहार कर कर चले गए, परंतु हमारी आस्था जीवित रही। क्यों जीवित रही? क्योंकि वो आस्था जीवित रखी आपने, हमने, मैंने, सबने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कीमत देकर हमने अपनी आस्था को जीवित रखा। इसीलिए हम आज इस सभागृह में हैं। ये हमारा सांस्कृतिक संचित है और इसी के चलते हम आज 10 राज्यों से आए हुए लोग एक ही सूत्र में बंधकर इस जगह पर विश्व सारस्वत सम्मेलन कर रहे हैं। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, रादर 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये 2 प्रश्न आप में से सबको अपने आप को पूछना चाहिए। वो प्रश्न है, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ से क्या लेके जाना चाहते हैं? Why are you here? What are you going to take away from this meeting? क्या आप इस सम्मेलन को केवल 2 दिन की छुट्टी की तरह देखना चाहते हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक पर्यटन है कि आप हरिद्वार आए, आप गंगा जी में नहाए, आपने 2 दिन खाना खाया, अच्छे मंदिर देखे और चले गए? क्या आप इससे कुछ लेना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को देखते हैं एक सूत्र में बंधे हुए? क्या आप अपने आप को can you see yourself taking something tremendous from here? क्या हम अपने अस्तित्व की खोज में यहाँ आए हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये अस्तित्व की खोज आवश्यक है भी? क्या कोई बता सकता है आप में से? Can anyone answer? Yes, please. Who wants to answer? Quick answer. Why do we need this? अस्तित्व की खोज क्यों आवश्यक है? इसलिए कि हम प्राचीन भारत की बहुत बड़ी धरोहर है और वो लुप्त हो चुकी है, उसे जागृत करना बहुत जरूरी है। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त करानी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न मैं केवल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने ये प्रश्न खुद से भी पूछा था। तब पूछा था जब गोवा के इतिहास के बारे में पढ़ रही थी, जब पहली बार पढ़ा था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। जीवन तो वैसे भी अच्छा खासा कट रहा था, अच्छी गृहस्थी है, बच्चे हैं, घर है, पति है, चाहो तो मैं अपना जो गृहस्थ धर्म है वही निभा सकती थी। लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैं जगह जगह जाके गोवा के इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर सबको बता क्यों रही हूँ, क्यों लेक्चर दे रही हूँ। ये जो सम्मेलन आयोजित किया है, उस सम्मेलन के आयोजकों ने रात दिन मेहनत करके, कष्ट करके ये पूरा जो सम्मेलन है वो क्यों आयोजित किया है। चाहो तो वो भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते थे, पर वो इतनी एफर्ट्स क्यों ले रहे हैं, वो इतने कष्ट क्यों ले रहे हैं, वो आप सबों को अपने अपने घर से यहाँ क्यों लाए हैं। क्या आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी संस्कृति नष्ट करने का प्रयास बार बार हुआ, हर बार हुआ। हम सभी अपने आप को सारस्वत कहते हैं। सरल है कि हम सभी के पूर्वज, आपके, मेरे, सभी के पूर्वज कभी तो सरस्वती नदी के तट पर रहा करते थे। फिर जब सरस्वती जी का प्रवाह कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से धीरे धीरे लुप्त होने लगा, तब हम बिखर गए। कुछ कश्मीर की तरफ गए, कुछ गंगा जमुना के दोआब में जाकर बसे, कुछ बंगाल बिहार तक चले गए, कुछ गुजरात राजस्थान में बैठे। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग वहाँ से आए हुए। कुछ परशुराम क्षेत्र में बसे, जिन्हें हम आज दाक्षिणात्य सारस्वत कहते हैं। जो सारस्वत गोवा में बसे थे, अपरांत में बसे थे, परशुराम क्षेत्र में बसे थे, उनके साथ तो घोर अन्याय हुआ। पहले इस्लामी शासकों ने उन पर जुल्म ढाए, फिर 1510 में जब पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया, तब क्रिश्चियनिटी के नाम पर उन पर इतना अत्याचार हुआ कि आज भी जब मैं उस कालखंड के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरी आंख नम हो जाती है। ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये हर दाक्षिणात्य सारस्वत की कहानी है। गोवा में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया गया। हजारों की संख्या में हमारे मंदिर तोड़े गए, हजारों की संख्या में। केवल 2 वर्ष में
गोवा में 600 से ज़्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए। इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सच है। मूर्तियां ध्वस्त की गई। जो अत्याचार इस्लामी शासकों ने हमारे उत्तर भारत के भाई बहनों पर किया, उतना ही क्रूर और उससे भी घिनौना अत्याचार पुर्तगाल के ईसाई शासकों ने गोवा की हिंदू जनता पे किया। गोवा के हिंदू मूल निवासियों को जबरन ईसाई बनाने के लिए इंक्विजिशन के नाम पे उनको बंदी बनाया गया, उनका छल किया गया और कईयों को तो जिंदा जला दिया गया। हिंदू धर्म त्यागने के लिए कई प्रलोभन भी दिए जाते थे, पैसे तो दिए जाते थे, जमीन दी जाती थी, उनको अधिकार दिए जाते थे। फिर भी गोवा के बहुतांश हिंदू मूल निवासियों ने अपना धर्म नहीं त्यागा। उन्होंने अपनी भूमि त्याग दी, उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, अपनी संपत्ति त्याग दी, अपने जो रिलेटिव्स थे उनको छोड़ दिया, परंतु अपनी धर्म को नहीं त्यागा, अपनी भाषा को नहीं त्यागा, अपनी संस्कृति को नहीं त्यागा। वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सारस्वत होने का जो उनका अस्तित्व है, उसको जीवित रखा। हम और आप जब पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ते हैं तो केवल आंकड़े पढ़ते हैं कि इतने हजार लोगों ने इस साल में गोवा छोड़कर कर्नाटक में शरण ली, इतने साल में इतने हिंदू लोगों ने केरल में शरण ली, परंतु उस पीड़ा का एक मानवीय चेहरा भी है। There is a human face to this tragedy, to this mass genocide and mass migration. पर उसके बारे में आपको कोई बताता नहीं है। जब गोवा के मूल निवासी हिंदुओं को ये बोला गया था कि आप अपने ही बच्चे को अपने ही धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, आप अपने बेटे को रामायण नहीं सुना सकते, आप अपनी बेटी को महाभारत की कहानी नहीं बता सकते, आप अपने घर में गीता की पुस्तक नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो आपको बंदी बना दिया जाएगा, आपका छल किया जाएगा। अपने माता पिता को उनकी मृत्यु पर आप दाह संस्कार नहीं कर सकते, आपको उनके शरीर को एक राफ्ट में डालकर नदी में छोड़ना होगा, क्योंकि सरकार तय करती है कि हिंदू संस्कारों की जाते हुए कोई अग्नि संस्कार पोर्तुगीज गोवा में नहीं करेगा। आप जनेऊ नहीं पहन सकते, शिखा रखने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप अपनी बेटी का विवाह हिंदू विवाह पद्धति से नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज यहाँ बैठकर कि उन लोगों पर क्या बीती होगी? नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे भी हाँ ये पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये तो 400 साल पहले हो गया, तो छोड़ दीजिए, आगे की सोचते हैं। लेकिन क्या ये होना बंद हो गया है? अगर इस सभागृह में कोई कश्मीरी सारस्वत है तो वो पीड़ा, मेरी बात समझ सकता है कि मैं किस पीड़ा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं 400 साल पहले की पीड़ा की बात कर रही हूँ। ये पीड़ा उन्होंने 30 साल पहले भुगती है। जो मेरे पुरखों को बोला गया था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप गांव छोड़ दो, या तो आपको मार दिया जाएगा, वही चॉइस कश्मीरी हिंदुओं को भी दिया गया था कि रालेव गालेव या चालेव, या तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको मार दिया जाएगा। जो सारस्वत पुर्तगालीज गोवा छोड़कर, सारस्वत और बाकी के भी हिंदू, सब हिंदू, रादर मुझे हिंदू कहना चाहिए, जो गोवा छोड़कर अन्य जगहों पर बस गए, वहाँ उन्होंने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वहाँ रात दिन प्रयास करके उन्होंने अपनी एक अलग हस्ती बनाई। वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने केवल जोड़ा, कभी तोड़ा नहीं। पर अपने पुरखों की ज़मीन से भी उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। आपने अभी जो फिल्म देखी, उस फिल्म में जो बहुत सुंदर मंदिर आपने देखे, वो सभी दाक्षिणात्य सारस्वतों की ग्राम देवता, कुल देवता के मंदिर हैं। जो मंदिर पुर्तगीजों ने तोड़ दिए थे, लेकिन वो मूर्तियाँ वहाँ के लोगों ने जान पर खेलकर दूसरी जगह पे ले गए थे वो, और फिर वैसे उनके मंदिर बना दिए गए, जो आप मेरे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। गोवा के जो मंदिर है, जो इतना सुंदर वीडियो आपने देखा, वो सदैव ही दाक्षिणात्य सारस्वत की आस्था का प्रतीक बने रहे। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि इन मंदिरों का, जिन मठों के आशीर्वाद से हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन 4 सारस्वत मठों का हमारे समाज जीवन में क्या स्थान है, ये हमारे पूर्वजों के त्याग का श्रद्धापूर्वक किया हुआ स्मरण है। हम आज गंगा किनारे हैं, ये उनको दिया हुआ एक तर्पण है।
जब तक आपकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक नहीं जाती, तब तक आप एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकते। घास तो सहजता से आप एक झटके में उसको उठा लो जमीन से, वो आ जाएगी बाहर, लेकिन जो बड़ा वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत गड़ी हुई हैं जमीन में, उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। अगर ऊपर का पेड़ आपने काट भी लिया तो जब तक उसकी जड़ें जीवित हैं तो पेड़ भी फिर से जीवित उठता है। हमारे साथ भी यही हुआ, हमारे संस्कृति के साथ भी यही हुआ। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये निश्चय आपको करना है कि आपको सबको छाया देने वाला विशाल वटवृक्ष बनना है, या बकरी भी जिसे अपने दांतों से उखाड़ सकती है ऐसी घास। बस इसीलिए आज हम हैं। हमारी संस्कृति, हमारा आत्मसम्मान, हमारी भाषा, हमारा देश, हमारे मंदिर, हमारा धर्म, इसकी रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपना पड़ोसी देश जो खाने को रोटी के लिए तरस रहा है। जरा सोचिए, इसलिए हम आज आए हैं। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है टेम्पल्स ऑफ गोवा। जैसे मैंने बताया कि जो दाक्षिणात्य सारस्वत हैं, जो आज कई देशों में, कई राज्यों में बिखरे हुए हैं, वो कभी गोवा से आते थे और उनके ग्राम देवता, उनके कुल देवता के मंदिर गोवा में थे, छोटे छोटे गांवों में थे। लेकिन जब पुर्तगालियों ने वहाँ पे आक्रमण किया और उनको जबरदस्ती से ईसाई धर्म के लिए, धर्मांतरण के लिए प्रवृत्त किया गया, तब बहुत से जो गोवा के हिंदू हैं वो गोवा छोड़कर बहुत से जो गोवा के हिंदू हैं वो गोवा छोड़कर कोई कर्नाटक चले गए, कोई केरल तक चले गए, कोई महाराष्ट्र चले गए। लेकिन जब वो गए और कुछ गोवा में रहे, गोवा जो आज का गोवा है वो गोवा तब का गोवा नहीं था। जब पोर्चुगीज टेरिटरी, जब पोर्चुगीज आए थे तो बहुत छोटा था। जब उन्होंने मंदिर तोड़े थे तो वहाँ से मंदिर दूसरी जगह पे स्थलांतरित किए गए। उन मंदिरों की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये जो मंदिर है ये गोवा का एक टिपिकल मंदिर आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आप में से कितने लोग गोवा गए हैं? हाथ ऊपर करिएगा। आपने ये मंदिर तो देखा ही होगा, ये मंदिर बहुत फेमस है, ये शांता दुर्गा जी का मंदिर है, कवड़े का। लेकिन इस मंदिर की जो स्टाइल है, आप कह सकते हैं कि ये गोवा का एक टिपिकल मंदिर है। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करूंगी, क्योंकि जब तक हमको इतिहास समझ में नहीं आता तब तक हमको हमारा वर्तमान नहीं समझ में आएगा। सह्याद्री खंड स्कंद पुराण के उसमें लिखा है कि परशुराम जी ने 7 बाण अरेबियन समुद्र में छोड़े थे और वो समुद्र को पीछे हटा दिया गया था, और वो जो जमीन जो उभर आई थी उसको सप्त कोंकण बोलते हैं। और जियोलॉजिकल एविडेंस भी ये प्रूव करता है कि एक ऐसा सीस्मिक इवेंट हुआ था जहाँ से ज़मीन उभरी थी और समुद्र पीछे हट गया था, और जो ज़मीन उभरी वो सप्त कोंकण है। ये जो जिसको हम आज भी परशुराम क्षेत्र बोलते हैं, जो कोची से लेके महाराष्ट्र के कोंकण किनारे तक उसको हम परशुराम क्षेत्र बोलते हैं। उन सप्त कोंकण में से गोवा राष्ट्र गोवा था। एग्जैक्ट प्लेस जो बोलते हैं कि जहाँ परशुराम जी का बाण जहाँ समुद्र में गिरा था, वो आज भी उस जगह का नाम बाणावली है और वो गोवा के सासष्टी तालुका में है। इतिहास बदल जाता है, राज्यकर्ता बदल जाते हैं, लेकिन भूगोल कभी नहीं बदलता, जगहों के नाम नहीं बदलते, और नाम से आपको अपने इतिहास का पता चलता है। बाणावली में आज हिंदू बहुत कम है, लेकिन उसका नाम आज भी बाणावली ही है, क्योंकि वहाँ पे परशुराम जी का बाण गिरा था। वहाँ एक मंदिर था कात्यायनी बाणेश्वर, जो तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ की मूर्ति अवेरसा कर्नाटक में ले गए थे और वहाँ पे उसका मंदिर आज भी है। ऐसा कहते हैं कि जब परशुराम जी ने ये ज़मीन बनाई तब उन्होंने एक यज्ञ किया था हरमल में, और उन्होंने ये पूरी की पूरी ज़मीन थी वो कश्यप मुनि को दान में दे दी, और कश्यप मुनि ने 96 सारस्वत फैमिलीज़ को उस यज्ञ का पौरोहित्य करने के लिए बुलाया था। और जब ये यज्ञ पूर्ण हुआ तब वो 30 फैमिलीज जो हैं वो तीसवाड़ी नाम की जगह में स्थित हो गए, इसीलिए उसको तीसवाड़ी बोलते हैं। जैसा मैंने कहा, इतिहास बदल जाता है, भूगोल नहीं बदलता है।
और बाकी के जो 66 फैमिलीज थे जो बचे हुए, वो सहासष्टी मतलब 66 नाम के एरिया में, कोस्टल एरिया में बस गए थे, एंड दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ दाक्षिणात्य सारस्वत्स ऑफ टुडे. Goa is known historically as Go Rashtra, Go Manchala, Aparanta and Gomanta. इसका साफ अर्थ ये है कि वहाँ पे कभी बहुत गोधन हुआ करता था, और वो भी आज भी इतना समृद्ध और इतना सुंदर वो कोस्टलाइन है कि जाहिर है वहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा गोधन हुआ करता था. ये गोवा की पोर्चुगीज आने से पहले की टाइमलाइन है कि 3rd-4th सेंचुरी से. याद रखिएगा कि आज आप जो मैप में गोवा देखते हैं उस गोवा की मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जो बाउंड्रीज हैं वो कभी बड़ी हैं कभी कम हुई हैं, लेकिन ये रफ उसका टाइमलाइन है. पहले भोज, फिर मौर्य, फिर चालुक्य, फिर शिलाहार, फिर कदम्ब. और कदम्ब जो थे उनके काल में गोवा का बहुत विकास हुआ, क्योंकि कदम्बों की जो राजधानी थी वो गोवा में थी. उसका नाम था चंद्रपुर, जिसको आज चांदर बोलते हैं. वहाँ अभी भी आज एक बहुत बड़े मंदिर के अवशेष आपको आज भी मिलेंगे. उसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस्लामिक रूल आया गोवा में, तब भी कई मंदिर ध्वस्त किए गए. लेकिन फिर जब विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ तो गोवा भी उसके अंदर आ गया और कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया. फिर 15th सेंचुरी में बहमनी इस्लामी रूल वहाँ पे हो गया, और फिर उसके बाद 1510 में पुर्तगीज आए. फिर 17वीं सदी में मराठाओं ने कुछ पार्ट्स लिए गोवा के. 17वीं सदी में आदिल शाह ने भी कुछ पार्ट, जो आज का गोवा हम देखते हैं वो उनके अंदर था. तो आज जब हम गोवा जाते हैं और गोवा की मंदिर देखते हैं तो हमको दिखता है कि वहाँ के ज़्यादातर मंदिर 17वीं सदी में और 18वीं सदी में बनाए गए हैं. तो क्या इसका अर्थ ये है कि पुर्तगीज़ों के आने से पहले गोवा में कभी मंदिर थे ही नहीं? ऐसे मंदिर गोवा में आज भी हैं. जो हमारी प्रगति है, जो हमारे मंदिर स्थापत्य के रूप की प्रगति है, उसको अगर आप भारत भर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे पहले तो हमने केव मंदिर मतलब गुफा मंदिर बनाए थे, और उसके बाद फिर मंदिरों की प्रगति होकर बड़े बड़े गोपुर और बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे. वैसे ही गुफा मंदिर गोवा में भी हैं, आज भी हैं. जहाँ लेटराइट स्टोन वहाँ हुआ करता था, उसके जो क्या कहते हैं उसको, पर्वत थे, उनमें से गुफाएं खोद कर उन्होंने मंदिर बनाए थे. ये मंदिर 4वीं सदी से 12वीं सदी तक के आपको गोवा में दिखते हैं. कांसुआ और नेत्रावली में सिर्फ एक गर्भगृह के मंदिर दिखते हैं, और अरावले, खांडेपार और रिवना में मल्टी सेल्ड केव्स मतलब एक ही गुफा समूह में अलग अलग मंदिर वाले केव्स आपको दिखते हैं. अरावले में एक ही गुफा में 5 शिवलिंग हैं पंचलिंग वर्शिप के लिए, और ये जो 5 शिवलिंग हैं जो आपको इस स्लाइड में दिखेंगे, उनका सबका आकार अलग अलग है. और यहीं पे एक शिलालेख भी है जिससे साफ ये प्रतीत होता है कि उस समय में भी गोवा में शिव पूजा थी. अब मैं आपको दिखाऊंगी जो कल क्विज में भी दिखाया गया था, वो मंदिर जो एकमात्र मंदिर है जो 11वीं 12वीं शती से आज भी गोवा में उसी अवस्था में इंटैक्ट है. ये है शिवजी का मंदिर जो कदम्ब राजवंश ने बनाया था. ये ब्लैक बेसल्ट स्टोन में बनाया था, और ये कर्नाट, द्रविड़ और हेमाडपंथी दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर है. आज यादवा एरा आर्किटेक्चर विद एलिमेंट्स ऑफ चालुक्य architecture, and it is the only pre-Portuguese temple to survive intact due to its remote location in a deep forest. इस मंदिर में एक गर्भगृह है, एक अंतराल है, एक नंदी मंडप है जिसके 10 पिलर्स हैं, और एक मुखमंडप है. इसका शिखर जो है वो 2 tiered है और वेसर स्टाइल का है, और मूर्तियां यहाँ पे बहुत देवकोष्ठ में छोटी छोटी सी हैं. ये उस मंदिर का क्लोज शॉट है. ये अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में इस शैली के आपको मंदिर दिखेंगे, महाराष्ट्र में आपको इस शैली के मंदिर दिखेंगे, लेकिन गोवा में आपको इस शैली का ये एकमात्र मंदिर दिखेगा. क्यों दिखेगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही मंदिर उस शैली का था, बहुत और भी होंगे, लेकिन वो तोड़ दिए गए.
ये एक और कदम्बकालीन मंदिर है गोवा में, कुर्डी में है। ये लैटराइट स्टोन में बनाया गया है और इसका जो मंडप के जो पिलर्स हैं वो बेसाल्ट में बनाए गए हैं और इसमें सिर्फ एक गर्भगृह है और आगे एक मुखमंडप है। ये मंदिर यहाँ नहीं था जहाँ आपको दिख रहा है, एक दूसरी जगह पे था। जब वहाँ पे डैम बना दिया तो इस मंदिर को पूरा का पूरा रिलोकेट किया और पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। ये जो मंदिर है ये आपने अभी वीडियो में भी देखा, ये सप्तकोटेश्वर का मंदिर है, ओपा का। सप्तकोटेश्वर के गोवा में कई मंदिर थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था सप्तकोटेश्वर का जो दीवार में था, जो 2 बार तोड़ा गया और दूसरी बार उसका छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्निर्माण किया गया, क्योंकि सप्तकोटेश्वर कदम्ब राजवंश के कुल देवता थे। वो कदम्ब राजे अपने आप को सप्तकोटेश्वर के दास बोलते थे। ये जो मंदिर है ये खांडेपार रिवर के किनारे पे बनाया गया है, लैटराइट स्टोन से बनाया गया है। इसका शिखर भी लैटराइट स्टोन से बनाया गया है और ये पहले तो कदम्बाओं ने बनाया था, फिर उसको विजयनगर साम्राज्य के काल में उसका जीर्णोद्धार किया गया और ये जैसा मैंने बताया कदम्ब राजवंश की ये फैमिली डीटी है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर आज का सप्तकोटेश्वर मंदिर है जो नार्वे में है, जो मैंने बोला कि 2 बार तोड़ के 2 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पहली बार इस्लामी आक्रांताओं ने इसको तोड़ा था और फिर विजयनगर के एक माधव मंत्री नाम के सरदार थे, उन्होंने उसी जगह पे उसका पुनर्निर्माण किया था। लेकिन जब पुर्तगीज गोवा में आए तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया दीवार में और वहाँ पे एक चर्च बना दिया और यहाँ का शिवलिंग जो है उसको जानबूझ के एक कुएं के आगे उसको बिठा दिया, शिवलिंग को, जिसकी लोग पूजा करते थे, कि जिन लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया जबरदस्ती, वो उस मंदिर पे उस शिवलिंग पे पांव रख के वो कुएं का पानी निकाले, क्योंकि उससे उनको जो आस्था थी उनकी इस ईश्वर के प्रति, उस आस्था को उनको डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन जब शिवाजी महाराज गोवा आए तब उन्होंने ये शिवलिंग देखा जो तब तक किसी और एक हिंदू व्यक्ति ने उसको उठा के नार्वे में एक छोटे से झोपड़ी में रखा था। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये मंदिर बना दिया और अभी गोवा सरकार ने, ये जो फोटो है ये पुरानी फोटो है, अभी गोवा सरकार ने इसका फिर से जीर्णोद्धार किया है और उसको जैसे था वैसे बना दिया है, बहुत सुंदर बना दिया है। आप कभी गोवा गए तो इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये मंदिर गोवा की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब मैं आती हूँ टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे। जैसे मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में ही 900 हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए थे। 1540 की एक एडिक्ट थी पुर्तगाल गवर्नमेंट की, उस एडिक्ट ने गोवा सरकार को, मतलब तत्कालीन पुर्तगीज सरकार को, ये सारे अधिकार दिए थे कि जब चाहे वो कोई भी हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पे चर्च बना सकते हैं। हिंदुओं को अधिकार नहीं था कि वो अपने तोड़े हुए मंदिर का पुनर्निर्माण करे, अपने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करे या मंदिरों का बड़ा बनाए। 1600 तक जो हिंदू कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे वो सब या तो गोवा छोड़ के चले गए थे या तो उनको वहाँ से हकाल दिया गया था। और जब वो चले गए तब उन्होंने अपने साथ अपने भगवानों की, अपने कुल देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ वो अपने साथ लेके गए थे और वो जहाँ भी गए उन्होंने अपने पूरे जो देवी देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे उनके मंदिर बना दिए। अगर आप भी आज कोची जाएंगे तो कोची का जो मेन सारस्वत मंदिर है, वेंकटरमण मंदिर, उसी के पास जो सारे बाकी के मंदिर, जो जिन भगवानों के मंदिर आपने उस वीडियो में देखे थे, उनके छोटे छोटे मंदिर आपको दिखेंगे। आप कर्नाटक में बसरूर नाम की जगह पे जाएंगे तो आपको उस एक ही गांव में कई सारे ऐसे मंदिर दिखेंगे जिनके मूल मंदिर गोवा में हैं, लेकिन जब लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी छोटी मूर्तियाँ लेके वहाँ पे मंदिर स्थापित किए गए। Mahalsa Mandir of Kumta, temples of Basrur and the Saraswat temples of Kerala belong to this period. अब हम आते हैं कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुआ कैसे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो उस जगह का है जहाँ पे कभी शांता दुर्गा का मंदिर हुआ करता था ओरिजिनल। अब वो मंदिर कवड़े में है, लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं वो पत्थर उस पुराने मंदिर के अवशेष हैं, बस आज वो पत्थर ही वहाँ पे हैं। सासष्टी का एक राचौल में एक किला था, उसमें एक कैप्टन दिएगो फर्नांडिस था, वो बहुत क्या कहते हैं उसको, फैनेटिक था।
उसने एक ही साल में सासष्टी में सालसेट डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए। और ऐसे पत्र आज भी मिलते हैं कि उन्होंने एक फादर थे लुइस गोम्स करके, उनको वहाँ का महालसा मंदिर जो मेरी कुलदेवता है, जो आप में से कईयों की भी होगी, उसका बहुत सुंदर मंदिर था, उस मंदिर का सर्वे करने के लिए उसको भेजा था। तो उसने जब वो मंदिर देखा तो उसको वो मंदिर का जो काठ का वर्क है, जो काष्ठशिल्प है, वो इतना सुंदर लगा कि उसने डिएगो को बोला कि इसको मंदिर को मत तोड़ो, आप इसी को चर्च बना दो, आप बस मूर्ति तोड़ो। मतलब कितने महान थे वो लोग। लेकिन फिर भी डिएगो रोड्रिगेज ने इस मंदिर को तोड़ा 7 मार्च को, और जो मूर्ति है, जो मेन मूर्ति, बड़ी मूर्ति थी, कहते हैं उनके रिपोर्ट्स हैं कि वो तोड़ी गई, लेकिन जो दूसरी मूर्ति थी महालसा की, वो मारदौल में लेके गए और वहाँ पे वो कई सालों तक एक छोटे से टेम्पररी स्ट्रक्चर में थी, जहाँ पे आज महालसा का बहुत बड़ा मंदिर है। और जो ओरिजिनल साइट था महालसा मंदिर का वेरना में, वहाँ पे भी अभी एक नया मंदिर बना हुआ है। मेरी जो एंसेस्टर्स थे, मेरे जो पूर्वज थे, वो जो 2 गांव थे वेरना और नागोवा, वो गोवा के सबसे बड़ा क्लैन था, और वो जो महालसा का मंदिर था वो सबसे बड़ा था। तो जब ये सब हो गया था तो मेरे पूर्वज वहाँ से निकल के फिर वो कई सालों तक ठिकाना ढूंढते रहे, और फिर कुंकली नाम का मेरा जो करंट एंसेस्ट्रल विलेज है, वहाँ जाके वो सेटल हो गए। ये जो फोटो आप दिख रहे हैं, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो शांतादुर्गा का मूल मंदिर जहाँ था वहाँ पे किया है। और वहाँ आपको पीछे जो बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है, वो शायद 400-450 साल पुराना है। मतलब जब वो मंदिर था तब भी ये बरगद वहाँ रहा होगा, और आज भी ये बरगद है। और आज अगर आप शाम के समय वहाँ जाते हो तो आपको वो आपके पास अगर वो कल्पना शक्ति है तो आपके इमेजिनेशन में आपको वो चीखें आज भी सुनाई देगी जो वहाँ के लोगों ने कभी उच्चारण किया था उसका, जब उनका मंदिर तोड़ा गया था। ये जो मंदिर है, ये वेरना में जहाँ महालसा का ओरिजिनल मंदिर था, वहाँ पे ये अब नया भव्य मंदिर बना दिया गया है। तो जब ये मंदिर मूल जगह पे तोड़े गए थे, तब वहाँ के हिंदुओं ने क्या किया? ऐसा सवाल मुझे कई लोग पूछते हैं जब मैं इस विषय पे भाषण देने जाती हूँ। तो उसका उत्तर बहुत सरल है। हिंदुओं ने जितना वो मूर्तियों को बचा सके उतना उन्होंने मूर्तियों को बचाया, और उनको वो हाथ से लेके वो मांडवी और जुआरी नदियाँ क्रॉस करके अंत्रुज महल में गए। वो तब हिंदू राजाओं के अंदर था, और वहाँ पे अलग अलग गांव में उन्होंने ये मूर्तियाँ रखी, छोटे से एक हट में रखी कई सालों तक। 17वीं शती में जब मराठा पावरफुल हो गए, तभी वहाँ पे पूरी तरह से मंदिर बन सके। Almost for 100 years, the temples were housed in very small huts. Huge temples that you see now today are only because the Marathas came into power and there was political power, and a lot of Saraswats became very powerful in the Peshwa kingdom, in the court of Scindias, in the court of the Peshwas, and they had the money and the political power to rebuild the temples. Naroram Mantri during the Peshwa rule funded the rebuilding of the Shantadurga temple at Kaule, and the villages of Mangeshi and Mardaur were also donated by the Peshwas for the building and maintenance of Mangeshi and Mahalsa Narayani temples. ये जैसे मैंने बताया, ये गोवा के मंदिरों की टिपिकल स्टाइल है। ये आपको और कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो स्थापत्य है वो परिस्थितिवश आया हुआ है। जो हमारे मंदिरों में, मंदिरों के जो हमारे मंदिर स्थापत्य में जो मंदिरों के भाग बोले गए हैं कि मंदिर को एक मुखमंडप होना चाहिए, एक सभा मंडप होना चाहिए, एक गर्भगृह होना चाहिए, एक पुष्करिणी होनी चाहिए, एक प्रदक्षिणा पथ होनी चाहिए, वो सब तो उन्होंने कायम रखा। लेकिन उनके कारागिर, तब तक हिंदू कारागिर जो थे वो गोवा छोड़कर चले गए थे, और जो बचे हुए थे उनको तब तक चर्चेस वो बिल्ड कर रहे थे। तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बदल गई थी। इसलिए आपको गोवा के मंदिर जो हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर से भी आए हुए आपको दिखते हैं, लेकिन वो पोर्चुगीज स्टाइल के मंदिर नहीं हैं, वो गोवन मंदिर हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब बोलते हैं कि ये इंडो पोर्चुगीज स्टाइल है। ये इंडो पोर्चुगीज स्टाइल नहीं है, ये गोवा की स्टाइल है।
ये मंगेशी का मंदिर है। ये आप में से बहुतों ने देखा होगा, क्योंकि जो भी गोवा जाता है वो गोवा के जो टूरिज्म वाले लोग हैं वो पहले उनको ओल्ड गोवा के चर्चेस दिखाने लेके जाते हैं और उसके बाद उनको हाँ एक मंदिर तो दिखाना ही चाहिए, इसलिए उनको मंगेशी में लेके जाते हैं। इसलिए ये मंगेश मंदिर काफ़ी लोगों ने देखा है, लेकिन बाकी के मंदिर जो गोवा के हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं। ये महालसा नारायणी का मंदिर है। ये जो रूफ आप देख रहे हैं वो कॉपर का है, मतलब तांबे का है। ये वेलिंग का मंदिर है लक्ष्मी नरसिंह का, और यहाँ पे भी आपको रूफ में वो जो तांबे के टाइल्स हैं वो दिखेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि गोवा के टेम्पल्स का स्थापत्य जो है वो यूनिक है। वो क्यों यूनिक है उसकी मैं कुछ आपको उसकी फीचर्स बताती हूँ। एक तो उनमें दीपस्तंभ होता है जो मराठा स्टाइल का एडिशन है, और ये दीपस्तंभ 5 माला, 7 माला, 9 माला का भी हो सकता है। और एक तुलसी वृंदावन होता है हमेशा वैष्णव हिंदू टेम्पल में गोवा के मंदिरों में द्रविड़ और नागर स्टाइल का शिखर नहीं होता, बट वहाँ पे एक ऑक्टागोनल डोम होता है, और ऊपर जो रूफ है वो स्लोपिंग होता है क्योंकि गोवा में बहुत बारिश ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर या तो मैंगलोर टाइल्स होते हैं या फिर कॉपर प्लेट्स होते हैं। और मंदिर के एंट्रेंस में एक नौबत खाना होता है जहाँ मंदिर के संगीत बजाने वाले जो कलाकार हैं वो वहाँ से संगीत बजाया करते थे। और मंदिर के पास हमेशा से ही एक पुष्करिणी होती है जो हमारा सनातन संकेत है। आप कोई भी मंदिर देखेंगे भारत में किसी भी जगह पे, या तो वो नदी के तट पे होंगे, और जहाँ नदी के तट के पास नहीं होंगे वहाँ उस मंदिर के पास या तो कुआं होगा या तो एक पुष्करिणी होगी, जो गोवा में भी है हर मंदिर में। अब टू कंटिन्यू, जैसा मैंने बोला कि मंदिरों के जो मुख्य भाग होते हैं, एक मुखमंडप, एक सभा मंडप, एक अंतराल और एक गर्भगृह, वो गोवा के मंदिरों में भी आपको दिखेंगे। गोवा के सारे मंदिर सांधार हैं, इसका मतलब उसका प्रदक्षिणा पथ जो है वो गर्भगृह के बाहर लेकिन मंदिर के अंदर है। और सारे मंदिरों में सब्सिडियरी टेम्पल्स, पालवी देवता का भी कॉन्सेप्ट है, जो मेन मंदिर एक है और उसके बाजू में छोटे छोटे मंदिर हैं जो आपको हर जगह पे दिखाई देंगे। और जो देवता हैं, जो मातृ देवता, जो मदर अर्थ का स्वरूप है, सांतेरी, मारजाई, माउली, केळबाई, रेणुका, भूमिका, उनकी मंदिर भी मुख्य मंदिर के बाजू में बड़े स्वरूप में होते हैं। और बाकी के भी जो देवता हैं, जो लोकल देवता हैं, जैसे राखणो, वेताल, दीज आर ऑल गार्डियन डेटीज, रवलनाथ, क्षेत्रपाल, उनके भी अपने मंदिर होते हैं। और मंदिरों में क्योंकि गोवा में लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती थी, लकड़ी का जो काम होता है, जो रूफ में आपको दिखेगा, जो आपको पिलर्स में दिखेगा, वो बहुत सुंदर होता है। वो हर मंदिर में आपको दिखने को मिलेगा। ये दीपस्तंभ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। गोवा के दीपस्तंभ और महाराष्ट्र के मंदिरों के दीपस्तंभों में भी फर्क होता है, लेकिन गोवा के दीपस्तंभ ऐसे होते हैं और हर मंदिर का दीपस्तंभ अलग होता है। ये वेलिंग की पुष्करिणी है, सबसे सुंदर पुष्करिणी गोवा की। अगर आप गए नहीं कहीं तो ज़रूर जाके देखिएगा। वो मंदिर भी बहुत सुंदर है और उसकी पुष्करिणी तो बहुत 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 सुंदर है। अंत में, समय की सीमा है, अंत में मैं एक कोट कर रही हूँ कि टेम्पल्स इन गोवा आर नॉट मियरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे आर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटी, परस्यूट ऑफ आर्ट्स एंड परपेचुएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। ये कमला मंडकेकर जी का है, ये रेफरेंसेस हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया और हमें अवगत कराया हमारा गोवा का जो एंशंट कल्चर जो था। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना रिसर्च किया है कि मुगल्स और क्रिश्चियन मिशनरी आने से पहले हमारा कल्चर गोवा के अंदर क्या लेवल में था, क्योंकि हमें रूट्स में जाना है तो रूट का पहचान भी होना बहुत जरूरी है, ताकि वृक्ष जब बड़ा होगा तो है सारा सारस्वत लोग जो है एम्बेसडर बन के हमारा सारस्वत समाज को बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो बहुत। ये एक्चुअली कम समय में नहीं बात कर सकती क्योंकि ये बहुत गहन विषय है जिसका मैंने बहुत ब्रीफली यहाँ पे उल्लेख किया है कि जो गोवा की संस्कृति थी वो कोई अलग संस्कृति नहीं थी, वो भारत की संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग था। और इसीलिए जब
प्री पोर्चुगीज गोवा की हम बात कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं कि गोवा हैज़ ए यूनिक कल्चर ऑफ फन एंड फेनी एंड बीचेस और वट एवर। बीचेस तो तब भी थे, बीचेस तो उत्तर कन्नड़ा में भी हैं, दक्षिण कन्नड़ा में भी हैं, लेकिन क्या कभी इसी को बोलते हैं कि दैट इज़ द लैंड ऑफ फन एंड फेनी एंड बीचेस? नहीं बोलते ना। तो ये जो इमेज है वो पोर्चुगीज़ों के आने के बाद आई है। पहले गोवा जो था वो भारत से अभिन्न नहीं था, अब भी नहीं है, तब भी नहीं था, लेकिन गोवा की संस्कृति भारतीय संस्कृति के मूल प्रवाह से ही जुड़ी हुई थी। आप गंगा का पानी चाहे रुद्रप्रयाग में देखें, चाहे देवप्रयाग में देखें, चाहे हरिद्वार में देखें, चाहे काशी में देखें, चाहे प्रयागराज में देखें, चाहे कलकत्ता में देखें, वो पानी अलग होता है क्या? पानी तो एक ही होता है ना, गंगा तो एक ही है। पानी अलग भी होता है क्योंकि पानी बहता रहता है, पर वो प्रवाह तो एक ही होता है। वैसे ही गोवा की संस्कृति भारत के संस्कृति के मूल प्रवाह से कभी भी अलग नहीं थी। जी नमस्कार शेफाली जी, हम राजस्थान से हैं और हमारा इतिहास कहते हैं कि जैसलमेर से जब सरस जी महाराज राजस्थान की तरफ गए और करीबन 400 गांवों को उन्होंने बसाया लुद्रवा से, जैसलमेर के लुद्रवा से, तो लुद्रवा का और गोवा का एक कनेक्शन है। अगर इतिहासकारों के माध्यम से आपको पता है तो हमें अवगत कराइए हम राजस्थानियों को कि हम गोवा से भी हमारा कनेक्शन है, कि जब गोवा से माइग्रेशन हुआ था जैसलमेर की तरफ, वही हम सारस्वत, तमाम राजस्थानी सारस्वत हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऐसा कनेक्शन है, लेकिन ये मेरे अभ्यास का विषय नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई यंग स्कॉलर इसके ऊपर काम करे, क्योंकि ऐसा कनेक्शन है, लेकिन उस कलेक्शन को एक स्कॉलर की दृष्टि से उसका अभ्यास करना और उसके ऊपर काम करना, ये आपके ही थ्रू कोई आना चाहिए, तभी वो, क्योंकि देन यू आर अ स्टेक होल्डर इन द स्टोरी, देन यू आर नॉट जस्ट एन एकेडमिशियन। इसलिए मैं आज आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं आप सबसे विनती करूँगी कि आप में से कोई यंग स्कॉलर ऐसा होना चाहिए जो इस विषय पर अभ्यास कर कर इस पर प्रकाश डाल सके। इस बिंदु के ऊपर ही मैं जोर दे रहा हूँ। लोधरुवा जो राजस्थान जैसलमेर में है, मैं वहाँ गया हूँ। एक ही छोटा गांव, 500 जनसंख्या होगी, उनमें से 60 लोग संस्कृत के विद्वान हैं, प्राध्यापक। वाह। I think we'll close this session now. Thank you very much, Shefali ji. I think you have spent enormous time in actually visiting these temples and collecting information. A big round of applause to Shefali Vaidya ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु कृपा है।